Good morning, students. So again, we are having this online classes. In the previous video, I told you about the algorithm. What is algorithm? How to write an algorithm, and what are the features of algorithm? All these things, and how we can present an algorithm. I've shown you some problems also yesterday. How we can write an algorithm and the advantage and the disadvantage of an algorithm. Every thing has its own likes and dislikes. So the same here, algorithm is also having the advantage and disadvantage. What is the good things about algorithm, and what are the bad things about algorithm? What are good things? That we can easily do everything and their algorithm easily explain the things. If the user is a beginner, using first time the computer, also the person can understand what the problem is. And the default of this algorithm is that it is a time consuming, and big complex calculations we can't do it easily, because यहाँ पे हम हर चीज़ को तोड़ तोड़ के लिखते हैं, छोटे छोटे स्टेप्स में लिखते हैं. तो अगर प्रॉब्लम थोड़ा ज़्यादा लंबा है तो हम उसको आसानी से नहीं कर पाएंगे. तो दैट वाज द मेन डिफ़ॉल्ट ऑफ दिस एल्गोरिथम कि इसमें वी कांट डू द स्मॉल थिंग, वी कांट डू द कॉम्प्लेक्स लार्ज थिंग्स टुगेदर इन अ स्मॉल वे. Okay, in that we need a proper descriptions, but here in algorithm each and every step is written in a small way, and each and every step is broken into small steps. So it is not easy to write so many steps at a time, and it takes lots of time to write the steps. But if we write in a proper programming language, then it will take less time and it will be described in a short way. Now I am giving you some problems. 2 questions are there, only 2 questions I am giving you. Just try these 2 questions and see whether you have understood the algorithm or not. I've shown you the steps how to write. I've shown you the way, what are the steps to write. I've shown you how you can describe the things. Everything I have shown you. If you have seen the video very carefully, if you listen what I have told in the video, if you have listened it carefully, then you can write these 2 questions very easily. Just try these 2 questions and see whether you have understood or not. And if you have not understood, please comment on the comment box. Today I will explain you the second part of this chapter, that is flowchart. Now what is flowchart? Flowchart is also a stepwise process to describe any problem, but in a pictorial form. Same thing. हाउ वी आर डिस्क्राइबिंग एन एल्गोरिथम, जैसे हम एल्गोरिथम में डिस्क्राइब कर रहे हैं वैसे ही हम फ्लो चार्ट में भी डिस्क्राइब करेंगे, लेकिन उसको एक पिक्टोरियल फॉर्म में डिस्क्राइब करेंगे. उसमें कई बॉक्सेस को यूज़ करेंगे. तो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द फ्लो चार्ट? अ फ्लो चार्ट इज़ अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन. विजुअल मतलब क्या होता है? जो हम देख सके, जो पिक्चर्स हम देखते हैं, विजुअल presentation of an algorithm needed to solve a problem. Each step in the sequence is denoted with a defined shape. ये डिफाइंड शेप मतलब जो ऑलरेडी डिफाइंड है. इस प्रॉब्लम, इस स्टेप के लिए ये वाला बॉक्स होगा, दूसरे स्टेप के लिए दूसरा बॉक्स होगा. सो ये डिफाइंड होता है. स्टेप्स आर लिंक्ड बाय यूजिंग कनेक्टिंग लाइन्स. वो लाइन से कनेक्टेड, एक एरो से कनेक्टेड होते हैं, जिसको डायरेक्शन एरो भी कहते हैं. कनेक्टिंग लाइन्स जिसको डायरेक्शन एरोज भी कहते हैं. एरो आपको पता है, आपने कीबोर्ड में एरोज देखे होंगे, वैसे ही एरोज हम यूज़ करते हैं फ्लो चार्ट में कनेक्ट करने के लिए हर एक बॉक्स को. तो फ्लो चार्ट क्या है? फ्लो चार्ट इज़ द विजुअल रिप्रेजेंटेशन जो पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है एल्गोरिथम को. जो हम एल्गोरिथम लिख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 करके, उसी को हम एक बॉक्स में, कई अलग अलग बॉक्सेस में लिखते हैं. तो उसको हम फ्लो चार्ट कहते हैं. फ्लो मतलब क्या होता है? फ्लो मतलब क्या होता है? चल रहा है. फ्लो एक लाइन ले में चल रहा है. और चार्ट मतलब डायग्राम. ठीक है. तो फ्लो चार्ट इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम नीडेड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए होता है. ईच स्टेप इज इन द सीक्वेंस इन डिनोटेड. स्टेप इन द सीक्वेंस. सीक्वेंस मतलब क्या? लाइन से जो हो रहा है, रैंडम वाइज नहीं, लाइन से जो है सीक्वेंस वाइज हो रहा है. इसके बाद ये, उसके बाद ये, इसके मतलब स्टेप 1, फिर स्टेप 2, फिर स्टेप 3, फिर स्टेप 4, ऐसे.
इज डिनोटेड विद अ डिफाइंड शेप, जो शेप ज़रूरी है। स्टेप 1 के लिए जो शेप का बॉक्स होना चाहिए, तो स्टेप 2 के लिए फिर दूसरा शेप का बॉक्स, इसे डिफाइंड होता है। स्टेप आर लिंक विद यूजिंग कनेक्टिंग लाइन्स, कनेक्ट करने के लिए, और इनको डायरेक्शन एरोज भी कहते हैं। डायरेक्शन एरोज मतलब ये बॉक्स किधर जा रहा है, किससे साथ और भी लिंक हो रहा है, इसको डायरेक्शन एरो भी कहते हैं। डायरेक्शन मतलब क्या, दिशा दिखाना। डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, दिशा दिखाना, ठीक है। और कनेक्टिंग का मतलब ज्वाइन करना, कनेक्ट करना, जोड़ना किसी चीज़ को। तो क्योंकि ये फ्लो हो रहा है, तो फ्लो को हम एक साथ जोड़ रहे हैं, तो इसको हम क्या कह रहे हैं, फ्लो चार्ट, ठीक है। नेक्स्ट मूव, that symbols are what the symbols are used in flowchart। क्या क्या सिंबल्स यूज होते हैं एक फ्लो चार्ट में। फ्लो चार्ट में कई तरह के सिंबल्स यूज होते हैं, जिनमें से सबसे पहला जो सिंबल यूज होता है वो होता है टर्मिनल और टर्मिनेटर, जिससे हम स्टार्ट करते हैं या स्टॉप करते हैं। स्टार्ट जब हम प्रोग्राम लिखना शुरू करते हैं, स्टॉप जब हम प्रोग्राम ख़त्म कर देते हैं। The terminator symbol is used to show where your flow begins or ends। कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ पे जाके ये ख़त्म हो रहा है। An oval shape represent it। आप देख सकते हैं फिगर में, ये एक ओवल शेप है और आप एक लाइन, पतली लाइन दिख रही है, उसको हम एरो, डायरेक्शन एरो कहते हैं, कनेक्टिंग लाइंस, ठीक है। तो स्टार्ट एंड स्टॉप दोनों टाइम हम एक ही बॉक्स का यूज़ करते हैं, ओवल शेप का बॉक्स का, जिसको हम क्या कहते हैं, टर्मिनल। प्रोसेस, फ्लो चार्ट प्रोसेस ऑब्जेक्ट इज यूज्ड टू इल्यूस्ट्रेट एन एक्शन। क्या प्रोसेस करना चाहते हैं, इल्यूस्ट्रेट मतलब एग्जामिन करते हैं कौन सा प्रोसेस होना चाहिए। जैसे प्लस कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, ये क्या है, प्रोसेस है। या जब हम किसी प्रोसेस को लिख रहे हैं, जैसे हाउ टू गो टू स्कूल, उसको अगर हम फ्लो चार्ट में शो करेंगे तो सारे बॉक्सेस प्रोसेस बॉक्स में शो होगा। कोई भी फर्स्ट बॉक्स आपका ओवल ही होगा, स्टार्ट बॉक्स, लेकिन उसके बीच में जो भी बॉडी स्ट्रक्चर होगा वो प्रोसेस बॉक्स से ही होगा, वो कोई और बॉक्स यूज़ नहीं होगा, क्योंकि वो सारी चीज़ हम प्रोसेस कर रहे हैं। वेकअप इन द मॉर्निंग, ये भी एक प्रोसेस है। ब्रश योर टीथ, ये भी एक प्रोसेस है। टेक अ बाथ, ये भी एक प्रोसेस है, ठीक है। कोम योर हेयर, वेयर योर यूनिफॉर्म, ये सारे एक प्रोसेस हैं। तो इसको सब चीज़ को हम प्रोसेस बॉक्स में ही लिखते हैं। तो दे आर रिप्रेजेंटेड एज रेक्टेंगुलर बॉक्स, इसको हम रेक्टेंगुलर बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। रेक्टेंगुलर बॉक्स आपको पता है, मैथ्स में रेक्टेंगुलर शेप्स आप पढ़ते हैं, तो ये सारे एक तरह के शेप्स हैं। फ्लो चार्ट में जो यूज़ होता है सिम्बल्स, वो एक तरह का शेप है जो आप मैथ्स में भी पढ़ते हैं। तब इन्हीं शेप को हम कनेक्ट करके एक फ्लो चार्ट क्रिएट करते हैं। तो देख सकते हैं कि इसमें हम एग्जांपल दिए हैं दो प्रोसेस बॉक्स का। एक में हम दिखाया टाई और नॉट, ये एक प्रोसेस है, टाई और नॉट। टाई का नॉट लगाने के लिए, टाई और नॉट बांधने के लिए, ये एक प्रोसेस। हम नॉट जब बांध रहे हैं तो इसका मतलब हम एक प्रोसेस कर रहे हैं। x इज इक्वल टू 2 इंटू वाई, तो ये भी एक प्रोसेस है। हम 2 को y के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब ये भी एक तरह का हम प्रोसेस कर रहे हैं। तो जो भी काम हम एक वे में करते हैं, जो भी काम हम करते हैं, जो काम करते हैं उसको एक प्रोसेस कहते हैं। तो प्रोसेस को हम किस बॉक्स में रिप्रेजेंट करेंगे, रेक्टेंगुलर बॉक्स में रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसका क्या है फॉर डेफिनेशन, फ्लोचार्ट प्रोसेस ऑब्जेक्ट इज यूज्ड टू इल्यूस्ट्रेट एन एक्शन, ऑपरेशंस और अ प्रोसेस। दिस आर रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगुलर्स। रेक्टेंगल बॉक्सेस में इसको रिप्रेजेंट हम करते हैं। नेक्स्ट, मूव टू द डेटा। द डेटा ऑब्जेक्ट ऑफन रिफर्स टू एज एन द आई और ओ शेप shows the input to the output forms of a process। इनपुट, क्या इनपुट कर रहे हैं, आउटपुट क्या उसका रिजल्ट निकल रहा है, ये हमें पता है, ये हमने एल्गोरिथम में लिखा है। एल्गोरिथम में हमने रीड करके दिया है, लेकिन यहाँ हम इनपुट करेंगे, ठीक है। जैसे और इसको रिप्रेजेंट हम पैरेललोग्राम शेप से करते हैं। ये भी आपका एक मैथ्स का एक शेप है जो आप हमेशा पढ़ते हुए आए हैं, तो ये आपको पता होगा ये शेप कैसा होता है। ये शेप इस तरह का होता है, आप देख सकते हैं, जिसे यू कैन सी द शेप वेयर इट इज़ रिटन एंटर 2 नंबर।
इनपुट कर रहे हैं 2 नंबर्स, यहाँ एंटर 2 नंबर्स लिखा हुआ है, जस्ट एज वी राइट इन एल्गोरिथम. Algorithm, when we are writing in algorithm, we write what? Enter 2 number. Yes, same here we are writing enter 2 number. Okay, and display the product. Whatever will be the process after that, we have to show the product. Okay, means this is the output and this is the input. So both in output and input box, we use same box, that is data. Okay, where it is represented as parallelogram shape. Clear? Like in start and stop also we are using the same box, that is oval shape, which is called terminator or terminal, which has 2 terminals. Always you know that has 2 ends, starting and end, starting point and ending point, 2 points are there. So here in data also 2 same boxes are used. First is the input box and second is the output box. नेक्स्ट कम्स द डिसीजन और कंडीशनल. डिसीजन मतलब क्या होता है? जो हम डिसीजन लेते हैं, जैसे हमने ये क्या बोलते हैं उसको, ये डिसीजन लिया हमने, ये प्रोसेस करने के लिए उसको ये प्रोसेस दिया करने को. और रोम्बस शेप और डायमंड रिप्रेजेंट्स, आप देख सकते हैं शेप को, ये एक रोम्बस शेप है या डायमंड शेप इसको कह सकते हैं. डायमंड का आपको पता है डायमंड का शेप कैसा होता है. डिसीजन ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट स्टेप्स विच कंटेन्स अ क्वेश्चन. उसमें एक क्वेश्चन रहता है. डिसीजन में हमेशा एक क्वेश्चन रहता है कि उसमें 2 कंडीशन आ जाते हैं. अगर हम किसी चीज़ का डिसीजन लेते हैं तो उसका 2 कंडीशन है. जैसे अभी लॉकडाउन का है तो डिसीजन आया कि इसको लॉकडाउन का बढ़ाना है या नहीं. इफ़ यू वांट टू इंक्रीज द लॉकडाउन, देयर इज अ 2 रीजंस. ओके, now as a situation what is happening, that lockdowns are increasing day by day, but first we have to decide it that whether we have to increase the lockdown or not. So decision is that we have to increase the lockdown. Okay, this is a decision. Okay, and it has conditions whether we will increase or not, whether we will increase or not. So there will be 2 conditions, yes or no. So you can see in the figure also it is showing no and yes. Okay, the answer to the question determines the arrow coming out of the diamond box. ये जो arrow निकल के आ रहा है इससे आपका डिसाइड होगा कि आपका डिसीजन सही है या नहीं. जैसे इज सीता इज टॉलर देन गीता, क्या सीता गीता से लंबी है या नहीं. अगर लंबी है तो आंसर नीचे जो यस वाला पोर्शन है उसमें लिखा आएगा ये सीता इज टॉलर, और अगर नो होगा तो लगेगा गीता इज टॉलर. ठीक है, जैसे लॉकडाउन का हम अभी एग्जाम्पल ले रहे थे कि इफ़ द प्राइम मिनिस्टर इज आस्किंग अबाउट दैट वेदर वी कैन इंक्रीज द डेट्स ऑफ द लॉकडाउन, देन व्हाट इज द डिसीजन, येस और नो. देन इफ द अदर पर्सन विल से येस, देन इट विल बी इंक्रीज्ड like it is increased, and if it is no, then it will be stopped. Okay, so decision, if it is written if the lockdown will be increased, then there will be 2 conditions, that is yes or no. If it is yes, then it will be increased till this date, or if it is no, then it will be stopped. Okay, this is the decision. So we have learned today about the 4 boxes. There are many boxes also. Further I will teach you more, but today I will teach you only 4 boxes. That is, first is the terminal or terminator. Terminal, the terminator symbol is used to show where your flow begins or ends, from कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ पे आपका ख़त्म हो रहा है. तो आपके 2 बॉक्सेस हैं जो ओवल शेप के होते हैं. यही शेप पहले स्टार्ट यूज़ होता है, फिर उसको स्टॉप पे यूज़ किया जाता है. प्रोसेस, the flowchart process object is used to illustrate an action. कौन सा एक्शन आप करना चाहते हैं, चाहे वो अर्थमेटिकल ऑप्शन हो या फिर नॉर्मल लॉजिकल ऑप्शन हो. जैसे यहाँ एग्जाम्पल लिखा हुआ है टाई अ नोट, या आप ये लिख सकते हैं जो आप, जैसे मैंने आपको दिखाया ही पहले एग्जाम्पल में कि गो टू स्कूल में जैसे वेकअप
इन द मॉर्निंग ये भी एक प्रोसेस है, ब्रश योर टीथ एक प्रोसेस है, टेक अ बाथ एक प्रोसेस है। तो ये सारे किस बॉक्स में आएंगे? इसी रेक्टेंगुलर शेप बॉक्स में नजर आएंगे। या जब आप कैलकुलेट कर रहे हैं C इजिकल टू A प्लस बी, तो A प्लस बी एक प्रोसेस है, मतलब आप दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो वो भी एक प्रोसेस रेक्टेंगुलर बॉक्स में ही शो करेगा। X इजिकल टू 2 इंटू वाई यहाँ शो कर रहा है, इसका मतलब 2 इंटू वाई एक प्रोसेस है। नेक्स्ट डेटा, ये क्या होता है? ये इनपुट और आउटपुट शो करता है। इनपुट क्या इंस्ट्रक्शन आप दे रहे हैं, और आउटपुट उससे क्या आपको इंफॉर्मेशन या आउटपुट या रिजल्ट आपको मिल रहा है। जैसे एंटर 2 नंबर्स, इसमें भी सेम बॉक्स यूज होता है जिसे पैरेललोग्राम बॉक्स कहते हैं, और डिस्प्ले प्रोडक्ट। और लास्ट है डिसीजन या कंडीशनल, जिसमें हम कंडीशन लेते हैं, डिसीजन लेते हैं, जिसके 2 कंडीशन होते हैं, या तो यस होगा या तो नो होगा, और उसी पे ये बॉक्स डिपेंड करता है। So today till here we explained you about the flow chart. Next video I will explain more about the boxes. Okay class, thank you.